بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں جیسے ہی نہا کر آئی تو اپنے کمرے میں آ کر ہلکا پھلکا میک اپ کرنے لگی، کیونکہ صبح صبح تیار ہونا میرے شوہر کو بہت پسند تھا اور وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تم صبح صبح تیار ہو کر رہا کرو، مجھے صبح تمہیں اس روپ میں دیکھنا بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے شوہر ذیشان کی خواہش کا احترام کرتی اور صبح صبح ہی تیار ہو جاتی۔ ابھی بھی میں میک اپ کرنے کی غرض سے سنگھار میز کے پاس آئی تھی تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے سرشار ہو گئی کہ وہاں پر موتیے کے گجرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ موتیے کے خوبصورت سے گجرے جو بالوں میں لگانے کے لیے میرے شوہر میرے لیے لائے تھے، انہیں دیکھ کر میں نے جھٹ اپنے بال سلجھا کر انہیں بالوں میں لگایا اور اپنے شوہر کی اس محبت پر نہال ہوتی گئی۔ ذیشان کی یہی عادتیں تو مجھے اچھی لگتی تھیں۔ وہ اچانک ہی مجھے کوئی نہ کوئی سرپرائز دے دیتے جس کی وجہ سے میں سارا دن خوش ہوتی رہتی۔ ابھی بھی ان کا یہ چھوٹا سا سرپرائز مجھے بے انتہا خوشی سے سرشار کر گیا تھا۔ میں گجرے لگا کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ اب ذیشان کے ناشتے کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے ان کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے رکھنا تھا۔ ذیشان نہانے گئے ہوئے تھے اور ان کی عادت تھی کہ وہ فوراً ناشتہ کرتے اور دفتر کے لیے نکل جاتے۔ میں نے محبت سے ناشتہ بنا کر میز پر رکھا اور ذیشان کا انتظار کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ وہاں پر چلے آئے اور مجھے اس طرح مہکا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بے ساختہ میری تعریف کی۔ میں اپنے آپ میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ نئی شادی تھی اور ابھی مجھے ویسے ہی ذیشان سے بہت شرم آتی کہ اچانک ذیشان کہنے لگے، ارے یہ صبح صبح موتیوں کے گجرے تمہیں کہاں سے مل گئے؟ ان کی بات پر میں نے ایک دم سر اٹھایا اور کہا، یہ تو آپ ہی لائے تھے میرے لیے۔ میں نے حیرانی سے ذیشان سے پوچھا تو انہوں نے ناں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، ارے نہیں، تمہیں کس نے کہا تھا؟ مجھے تو ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ ذیشان کی وضاحت پر میں خاموش ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے تو یہی لگا تھا کہ یہ گجرے ذیشان لے کر آئی ہیں، لیکن اب ان کے انکار کرنے پر مجھے ایک پریشانی نے آن گھیرا۔ اگر یہ گجرے ذیشان نہیں لے کر آیا تو پھر سنگھار میز پر یہ گجرے کس نے رکھے تھے؟ یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور قریب تھا کہ میں ذیشان سے اس بارے میں دوبارہ کوئی سوال کرتی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور دفتر کے لیے نکل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بہت دیر ہو چکی ہے، جبکہ میں خاموشی سے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میرا نام مریم ہے اور میں 21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میری شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے۔ میرے شوہر ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور ان کی نوکری دوسرے شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اس دوسرے شہر میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی صرف 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پہل تو میں رخصت ہو کر اپنے سسرال کے گھر ہی آئی تھی، لیکن ایک ہفتے کے بعد ذیشان مجھے اداس چھوڑ کر اپنی نوکری پر چلے آئے اور پھر یہاں آ کر ان کا اپنا دل نہیں لگ رہا تھا اور وہ بار بار مجھے فون کرتے۔ میں خود بھی ان کے بغیر بہت زیادہ اداس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1 مہینے کے بعد ہی ذیشان نے کمپنی میں اپنے تبادلے کی درخواست جمع کروا دی، لیکن 2 مہینے گزر جانے کے باوجود ان کی درخواست پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی ہم تبادلہ نہیں کر سکتے، کچھ وقت انتظار کریں، لیکن ذیشان کی بے چینیاں عروج پر تھیں اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر مجھے اپنے پاس سے بلوا لیا۔ ذیشان کے گھر والوں نے اس بات کا بہت زیادہ اعتراض کیا تھا، کیونکہ ان کی اماں یہی چاہتی تھی کہ میں وہیں پر رہوں اور ان کی خاطرداری میں لگی رہوں، لیکن ذیشان چونکہ مجھ سے محبت کرتے تھے اسی لیے انہوں نے یہ رسک نہیں لیا، مجھے اپنے پاس لے آئے۔ یہاں پر آ کر میں بہت خوش تھی کہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا اور اس کے پیچھے ایک بڑا سارا گراؤنڈ بنا ہوا تھا۔ یہ کافی پرانا گھر تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں کافی درخت بھی لگے ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر ہر وقت موسم ٹھنڈا سا محسوس ہوتا۔ ذیشان اور میں یہاں پر بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن آج یہ گجرے والے واقعے نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ ذیشان کے جانے کے بعد بھی میں وہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لیکن خیال جھٹک دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر بعد ہوا
मैं जो ख्याल को झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई थी और सुबह वाला गजरा अभी तक मेरे बालों में लगा हुआ था कि अचानक मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। मैं एकदम चौंक उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ लिपकी, लेकिन मेरे 2-3 बार पूछने पर जब कोई जवाब न आया तो मैं कंधे उचकाकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। वैसे भी मैं तो अभी यहाँ पर नई आई थी और मैं किसी को जानती भी नहीं थी। अभी कुछ देर गुजरी थी कि फिर से दरवाज़ा उसी अंदाज में ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया और अब की बार मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। न जाने कौन है जो इस तरह दरवाज़ा खटखटा रहा है और फिर बाहर भी नहीं होता। मैं एक बार फिर दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोल के देखा तो अब की बार भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो मैंने गली में निकलकर दोनों तरफ देखा, लेकिन दोनों तरफ कोई नहीं था। मुझे हैरत हुई, आखिर ये कौन है जो यूं दरवाज़ा खटखटा कर गायब हो जाता है। मैं कुछ सोचकर वापस आ गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद फिर से दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि दरवाज़ा खोलना नहीं बल्कि वहीं पर बैठी रहना है। लेकिन दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जा रहा था और अब मैं सच हो चुकी थी, इसलिए एकदम गुस्से में उठी और दरवाज़ा खोलकर कुछ बोलने ही वाली थी कि सामने खड़े ज़ीशान पर नज़र पड़ गई और मैं जैसे शर्मिंदा सी होकर रह गई, जबकि ज़ीशान इस वक्त बहुत परेशान थे और मुझे देखकर जैसे उन्होंने एक गहरा सांस लिया और कहने लगे, मरियम तुम कहाँ पर थी? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा था और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सब खैरियत है? ज़ीशान ने तशवीश से पूछा तो मैं उनकी परेशानी का ख्याल करके खामोश सी हो गई और उन्हें कहने लगी, जी मैं ठीक हूँ, वो बस मैं ज़रा सो गई थी और मुझे दरवाजे की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने शर्मिंदगी से कहा और फिर अंदर चली आई, जबकि ज़ीशान भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। तो मुझे ख्याल आया और मैंने पूछा, आज आप जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो कहने लगे, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और दफ्तर में बैठा नहीं जा रहा था। तबीयत बेचैन सी थी इसलिए घर चला आया। ज़ीशान ने ये कहते हुए अपना बैग एक साइड पर रखा और खुद बगैर कपड़े तब्दील किए बेड पर लेट गए और अपने एक हाथ से सर को दबाने लगे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जल्दी से आकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई और फिर वो चाय पीकर सो गए, जबकि मुझे बार बार अब दरवाजे का ख्याल आ रहा था। न जाने पहले कौन था जो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था और अब मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। ताहम मेरा ध्यान ज़ीशान की तरफ था, जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और अब उन्हें बुखार हो चुका था। मैं उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी और रात भी वो काफ़ी बेचैन रहे थे और काफ़ी देर से सोए थे। इसी वजह से सुबह मेरी आंख भी काफ़ी देर से खुली थी और जब मैं उठकर बाहर आई तो एकदम मोतिये की खुशबू मेरे नाक से टकराई। तो मैं चौंक उठी और फिर जैसे ही मेज़ की तरफ निगाह की तो वहाँ पर मोतिये के गजरे पड़े हुए थे। ये देखकर मैं हैरत से दंग रह गई और इर्द गिर्द चोर निगाहों से देखा। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये गजरे कौन लेकर आया है, किसने यहाँ पर रखी हैं। ये सोचते हुए मैं गजरों के करीब आ गई और बेइख्तियार उन्हें अपने हाथों में पकड़कर देखा। वो बिल्कुल ताज़ा गजरे थे। मैंने बेइख्तियार उन गजरों को अपने बालों में लगा लिया और मामूल के मुताबिक बावर्ची खाने में काम करने लगी। लेकिन कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे गजरों को सूंघ रहा है। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दी क्योंकि मुझे ज़ीशान का ख्याल आया था और उनके अलावा कौन हो सकता था। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरे होंठों से एकदम मुस्कुराहट गायब हो गई और ये देखकर मैं खौफज़दा हो गई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं इसे अपना वहम समझती अगर जो मैंने वहाँ से किसी को हटते ना देखा होता, क्योंकि मुझे वाज़े तौर पर यह बात महसूस हुई थी कि जैसे ही मैं पीछे पलटी थी तो कोई एकदम वहाँ से हट गया था और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। अब मेरा जहन बढ़ चुका था और मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और कमरे में चली आई। ज़ीशान को उठाने का इरादा कर ही रही थी कि वो खुद उठ गए और मेरे चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर पूछने लगे, क्या हुआ मरियम, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है? ज़ीशान ने पूछा तो बेख्तियार मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, बस रात नींद पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनकर ज़ीशान ने सर हिला दिया और उठ गई, जबकि मैं उनका नाश्ता लेकर कमरे में ही आ गई। लेकिन आज मैं कुछ चुप थी
और बार बार मुझे वो एहसास महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे गजरों को सूंघ रहा है। ये बात मुझे खौफज़दा कर रही थी और अपने इस खौफ को मैं ज़ीशान को बयान नहीं कर सकती थी, वरना शायद वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। मुझे अब गजरों से भी वहशत हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें नोच कर उतार फेंका। गजरों के कुछ फूल टूटकर इधर उधर गिर गए थे। मैंने बेजारी से उनकी तरफ देखा और करीब था कि उन्हें उठा देती। इतनी देर में ज़ीशान आ गए और नाश्ता करने लगे। आज उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली थी और उनका घर पर ही आराम करने का इरादा था। लेकिन अब मेरा मूड ख़राब हो चुका था और मेरी तवज्जो बढ़ चुकी थी। मुझे बार बार अपने पीछे किसी की मौजूदगी के एहसास का खौफ हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसलसल मेरे साथ है। वो गजरे मेरे कमरे में बिखरे पड़े थे। आज ज़ीशान घर पर ही थे, इसलिए मैं भी काम की सुस्ती कर रही थी और सब कुछ वैसे ही पड़ा रहने दिया था। ज़ीशान के साथ सारा दिन गुजार कर मैं शाम तक फ्रेश हो गई थी। ज़ीशान की तबीयत भी पहले से बेहतर थी। यही वजह थी कि उन्होंने मुझे तैयार होने का कहा और कहने लगे आज हम खाना बाहर खाएंगे। मैं भी खुश हो गई क्योंकि हमें जाने कितना अरसा गुजर चुका था कि हम इस तरह बाहर नहीं गए थे। और ज़ीशान ने कहा था तो इसका मतलब था कि उनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे बाहर लेकर चले आए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन का इख्तिताम इतना बुरा होगा। जब बाहर से खाना खाकर वापस आए तो जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ आई तो देखा सामने ही दीवार के ऊपर जगह जगह पर गजरे लटके हुए हैं और सारे कमरे में मोतिये और गुलाब की खुशबू फैली हुई है। ये देखकर मैं और ज़ीशान दंग रह गए। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरी आंखों में उतरे हुए खौफ को देखकर ज़ीशान कहने लगे, तुम घबराओ मत, यकीनन कोई चोर आया होगा और उसने ये हरकत की होगी। ज़ीशान ने आगे बढ़कर वो गजरे उतारने शुरू कर दिए और उन सबको उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, जबकि उन्होंने अपने सारे सामान को चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई थी। सब कुछ अपनी जगह पर सलामत था। ज़ीशान कहने लगे, न जाने उस चोर का क्या मकसद था, जबकि मेरी हालत गैर थी। और मैंने उन्हें कहा, ज़ीशान आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मेज़ के ऊपर गजरे पड़े थे और मैंने सोचा कि वो आप लेकर आए हैं। ये किसी चोर की हरकत नहीं है। न जाने वो कौन है जो चुपके से आता है और इस तरह गजरे रखकर चला जाता है। मैंने खौफज़दा लहजे में कहा तो ज़ीशान कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम घबराओ नहीं, इस बात को सर पर सवार मत करो। ज़ीशान ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, ताहम न जाने क्या बात थी, मेरे दिल में एक वहम बैठ चुका था और अब मुझे कोई भी चीज़ सुकून नहीं लेने दे रही थी। और मेरा ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ। सुबह के वक्त जब मैं उठकर बाहर आई तो देखा रात को जो गजरे ज़ीशान ने उठाकर बाहर फेंक दिए थे, अब वही गजरे बाहर मेज़ पर पड़े थे और उनके साथ कुछ और गजरे भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं उनको देखकर खौफज़दा हो गई और सारे कमरे में ऐसी निगाहें दौड़ाई जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है। उल्टे कदमों वापस कमरे में आई और ज़ीशान को उठाया। मुझे देखकर वो हवास बाख्ता से हो गए और जब मैंने उन्हें सब बताया तो वो कहने लगे, क्या बात है, आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है, जबकि मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं था। ज़ीशान ने भी जब उन गजरों को अपनी आंखों से देखा तो जैसे उन्हें यकीन नहीं आया था, ताहम वो मुझे अपने साथ लगाकर तसल्ली देते रहे और दोबारा से उन्हें उठाकर एक थैले में डालकर कचरेदान में फेंक आए। उन्हें जैसे अब यकीन हो गया था कि अब दोबारा कोई भी वहाँ पर गजरे नहीं रखेगा, लेकिन उनका यकीन गलत था। अब तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था जिसने हम दोनों मियाँ बीवी की नींदें हराम करके रखती थीं। वो जो कोई भी था हर रोज़ गजरा लाकर वहाँ पर रख देता और जब तक मैं उन्हें अपने बालों में ना लगा लेती मेरी चीज़ें ख़राब कर देता। मुझे इधर उधर चीज़ें टूटी हुई मिलती, मेरे कपड़े फटे हुए बिस्तर पर पड़े होते और सारी चीज़ें ख़राब की होती। मैं अब बहुत परेशान हो गई थी और इस सूरत हाल से ज़िज होकर रह गई थी। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हीं दिनों में ज़ीशान को 2 छुट्टियां मिली थी और उनका कहना था कि चलो अपने शहर घूम कर आते हैं और अम्मा अब्बा से भी मुलाकात हो जाएगी। मैं भी खुश हो गई क्योंकि 2 महीने हो गए थे और उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और खुशी खुशी तैयारी की। ज़ीशान के साथ मैं अपने शहर चली आई। एक दिन ज़ीशान की अम्मी अब्बू की तरफ गुजार कर अगले दिन मैंने अपने माँ बाप की तरफ जाना था। हम बहुत खुशी खुशी यहाँ आए थे और सब लोग हमें देखकर बहुत खुश थे। लेकिन उसी रात ही
مجھے کمرے میں پھر سے گجرے رکھے ہوئے ملے۔ ان گجروں کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ذیشان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میں تو گجرے نہیں لے کر آیا، جبکہ گھر میں باقی افراد بھی اس بات سے لا علم تھے۔ ذیشان میری آنکھوں کے خوف کو پڑھ چکے تھے، اس لیے مجھے کہنے لگے تم ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل کرتا ہوں۔ آخر وہ کون ہے جو اس طرح گجرے لے جاتا ہے؟ ذیشان کی بات پر میں ان کے ساتھ لگ گئی اور خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی، ذیشان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ مجھے آپ سے جدا نہ کر دے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ذیشان نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگے، پگلی ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ذیشان کے ساتھ لگے ہونے کے بعد مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ انوکھا سا ہوا ہو۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی کہ ذیشان کا چہرہ ایک خوفناک چہرے میں تبدیل ہو چکا تھا اور ان کے چہرے کے اوپر ایک بڑا سا زخم بنا ہوا تھا جس میں خون لگا ہوا تھا۔ میں ایک دم چیخنے لگی، چلانے لگی کہ سب دوڑتے چلے آئے، اور پھر ان سب لوگوں میں آنے والے ذیشان کو دیکھ کر مجھے جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ ذیشان کو ادھر سے آتا دیکھ کر میں نے بے یقینی سے دوبارہ پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ذیشان بیٹھے تھے اور میں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک دم اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو ذیشان اور ان کی امی میرے پاس ہی پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے دکھتے ہوئے سر کو دباتے ہوئے اٹھنے لگی تو ذیشان نے منع کر دیا اور کہنے لگے، مریم تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم کیوں اس طرح چیخنے لگ گئی تھی؟ ذیشان کے پوچھنے پر مجھے اچانک ہی وہ منظر دوبارہ یاد آ گیا اور میری آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں نے بے اختیار ذیشان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہنے لگی، تم اب یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے، تم کیوں یہاں پر آ گئے ہو؟ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے اونچی اونچی روتے ہوئے ذیشان کو دھکا دینا شروع کر دیا اور اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ لیے۔ میری ساس مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا شوہر ہے ذیشان، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ ذیشان خود بھی حیرت سے ہکا بکا تھے، لیکن مجھے ذیشان کے چہرے میں وہ خوفناک چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اسی وجہ سے میں انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، جبکہ ذیشان کو اس بات کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے ذیشان میرے کمرے میں نہیں آئے، لیکن مجھے لاشعوری طور پر ان کا انتظار بھی تھا۔ تاہم اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر ارد گرد چکنے سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کمرے میں کوئی موجود ہے، کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، اور میں گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ہی ذیشان پھر سے میرے لیے چائے کا کپ لے کر آئے اور میرے قریب بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ابھی میری ذہنی کیفیت بالکل ٹھیک تھی اور میں ذیشان کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا، ذیشان مجھے معاف کر دیں، نہ جانے اس لمحے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کی، آپ کو دھکے دیے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے بہت شرمندہ ہو کر ذیشان سے معافی مانگ لی تو وہ کہنے لگے، ارے نہیں کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، تمہاری ذہنی حالت ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم نے وہ گجروں والے واقعے کا بہت زیادہ اثر لے لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ذیشان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو پھر سے وہ خوفناک چہرہ مجھ پہ مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، میں تمہارے لیے محبت سے گجرا لے کر آتا ہوں اور تم لگاتی نہیں ہو، اب میں گجرے دے کر جاؤں گا، انہیں اپنے بالوں میں لگا لینا ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس خوفناک چہرے نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخر میں مجھے دھمکی دی اور اتنے سرد انداز میں میری طرف دیکھا کہ میں خوف زدہ ہو کر رہ گئی اور ایک دم میں زور سے ذیشان کو دھکا دے کر انہیں کہنے لگی، پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ میں چیختے چلاتے ہوئے انہیں دھکا دیے جا رہی تھی اور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ میری کیفیت پھر دورے والی ہو گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے حواس میں نہیں ہوں، اور ذیشان کو دھکا دیتے دیتے نہ جانے کب میں بے ہوش ہو کر گر گئی، مجھے خود خبر نہ ہوئی۔ اب کی بار جب مجھے ہوش آیا تو میرا سارا جسم درد کر رہا تھا اور مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں برسوں کی مریض ہوں۔
मैं उठने की कोशिश करने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोक दिया और कहने लगी, लेटी रहो बहू, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली, ताहम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सास का मिजाज कुछ खराब सा है। मैंने उनसे ज़ीशान के बारे में पूछा तो वो नाराज़गी से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें उसकी क्या फिक्र, तुम तो उसे धक्के देकर कमरे से निकाल रही थी। अगर इतनी फिक्र होती तो ऐसा करती। जबकि मैंने दुख भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और कहा, माँ जी आप तो मेरी बात का यकीन करें, इस वक्त यहाँ ज़ीशान नहीं था, उस वक्त कोई और था जो ज़ीशान का रूप लिए हुए मेरे करीब बैठा था और मुझ पर हंस रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ज़ीशान को धक्के नहीं दिए, मैंने उस मकरूह चेहरे वाले इंसान को धक्के दिए जो न जाने कब से मेरे पीछे पड़ा है और मुझे तंग कर रहा है। मैंने अपनी सास से कहा तो वो नासमझी से मेरी तरफ देखती रह गई और फिर वहाँ से उठकर चली गई। मैं बेबसी से रोने लगी। किसी को भी मैं अपनी बात नहीं समझा सकती थी, कोई भी समझ नहीं सकता था। सिर्फ ज़ीशान ही थे जो मुझे समझते थे, लेकिन वो जब भी मेरे सामने आते तो उनके चेहरे में मुझे वो मकरू चेहरा दिखाई देता, जिसके बाद मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और ज़ीशान को धक्के देने लगती। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं और किस तरह इस सारी मुसीबत से बाहर निकलूं। इसके बाद से ज़ीशान अभी तक मेरे कमरे में नहीं आए थे और मुझे लाशऊरी तौर पर उनका इंतज़ार था, और फिर मेरा इंतज़ार ला हासिल नहीं रहा। ज़ीशान अंदर चले आए और वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो एहतियातन मुझसे कुछ फासले पर बैठ गए। मैंने जब ये बात महसूस की तो मेरा दिल कट कर रह गया था। ताहम वो मुझे कहने लगे कि मरियम, मेरे काम का खर्च हो रहा है और मुझे वापस आना है, तुम अभी कुछ दिन यहाँ पर रह लो, जब तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो उधर आ जाना। मैं इस तरह तुम्हें इस हालत में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मैं तो काम पर चला जाऊंगा और तुम घर पर पीछे अकेली डरती रहोगी और इसी तरह परेशान होती रहोगी। बेहतर यही है कि कुछ दिन गुजार कर आ जाना। ज़ीशान ने मुझे ये कहा तो मैं उनकी तरफ बेयकीनी से देखती रह गई और फिर बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से अल्फाज निकले और मैंने कहा, आप इस हालत में मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। जबकि वो कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे काम का खर्च हो जाता है और मैं छुट्टी नहीं ले सकता। ज़ीशान ने अपनी मजबूरी बयान की तो मैं खामोश हो गई। मुझे मालूम था कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी और इसीलिए खामोश हो गई। ताहम मैं अपनी जगह से उठकर ज़ीशान के पास आकर बैठ गई और उनके कंधे पर अपना सर रख लिया। ज़ीशान आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगे और कहने लगे, तुम अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब मैं तुम्हारे लिए रोज़ गजरे लेकर आया करूँगा, उन्हें अपने बालों में लगा लेना। एकदम वो सब कहते कहते ज़ीशान की आवाज़ बदल गई और आखिर वाला जुमला उन्होंने एक भारी और खौफनाक आवाज़ में अदा किया। मैंने एकदम अपना सर उठाकर देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ज़ीशान के चेहरे में फिर से वही खौफनाक चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं एकदम खौफज़दा होकर पीछे हट गई, जबकि ज़ीशान कहने लगे, मरियम क्या हुआ है, तुम फिर से डर रही हो। ज़ीशान के चेहरे पर अब झुंझलाहट थी और उन्हें भी शायद मेरी इस हालत पर गुस्सा आ रहा था। ताहम मैं एकदम कमरे से बाहर निकल आई और छत पर चली गई। मुझे इस वक्त शदीद घबराहट हो रही थी और खौफ महसूस हो रहा था। छत पर रात का समा था, हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैं अपनी बेतरतीब सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी और ख़ुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो ज़ीशान ही है, कोई और नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई तो मैं एकदम पलटी और कहने लगी, ज़ीशान मुझे माफ़ कर दें, मैं क्या करूं? जब भी आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे इसमें किसी और का चेहरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई मकरूह चेहरे वाला इंसान सामने आ गया हो। मैंने बिना देखे ज़ीशान से माफ़ी मांगी और उनके करीब चली आई, लेकिन उनको हाथ लगाते ही मुझे एक झटका सा लगा और जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ निगाह की तो ये चेहरा वही चेहरा था जो मुझे ज़ीशान के चेहरे में दिखाई देता था। और इस वक्त उस मकरूह चेहरे को देखकर मेरी आंखों के सामने सातों आसमान घूम गए। मैं बेहद परेशान हो गई और खौफ के आलम में उसे देखती रह गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान सी जगह पर थी। ये जगह बड़ी अजीब सी थी और यहाँ पर इर्द गिर्द बहुत तेज़ बू फैली हुई थी
और इस तरह महसूस हो रहा था जैसे करीब ही कोई चीज़ जल रही हो। उस चीज़ के जलने की बू ने सारे माहौल को ख़राब कर दिया था। मेरा बेख्तियार दिल उलटने लगा और मैं एक तरफ को झुक गई। कह करने के बाद कुछ तबीयत संभली तो इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। यहाँ पर अंधेरा फैला हुआ था और बहुत हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं आंखें फाड़े इतनी रोशनी में ही इर्द गिर्द देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस जगह पर हूँ। अचानक मुझे याद आया कि मैं तो अपने घर की छत पर मौजूद थी और वहाँ पर वही मकरू चेहरे वाली मखलूक मुझे दिखाई दे रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था वो मुझे कुछ याद नहीं। मैं एकदम डर के उठ बैठी और इर्द गिर्द हाथ मारकर दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करने लगी। मुझे समझ आ गई थी कि ये कोई कैद खाना है, लेकिन किसने मुझे यहाँ पर कैद किया और मैं किस जगह पर हूँ, इस बारे में अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और यही बात मुझे खौफज़दा कर रही थी। वो जलने की बू अभी तक आ रही थी और बहुत तेज़ थी। मैं काफ़ी देर आवाज़ें देती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दीवारों पर हाथ मार मार कर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। और फिर मैं थक हार कर बैठ गई और खौफ भरी निगाहों से इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। न जाने यहाँ पर कितना वक्त गुजर चुका था। मैंने एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं झपकी थी कि फिर अचानक एक तरफ से दरवाज़ा खुला और कमरे में रोशनी फैल गई और रोशनी से मैं अब कुछ देखने के काबिल हुई थी। और फिर दरवाजे में मैंने उसी मकरू चेहरे वाली मखलूक को देखा। उसके हाथ में आज भी गजरे थे और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। मैं खौफ के मारे जर्द हो जा रही थी और दीवार के साथ लगी हुई थी। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उसे अपने करीब आने से रोकूं, लेकिन वो नहीं रुका। सीधा मेरे करीब आया और उसने मेरे बालों में गजरा लगा दिया और फिर एक गहरा सांस भरकर उन गजरों को सूंघा। मैं नफरत से मुंह फेर कर रह गई थी, जबकि वो एक जोरदार और मकरू कहकहा लगाकर हंसने लगा था और फिर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र है, लेकिन तुम जब यूँ मुझसे खौफज़दा होती हो और मुझसे बेजारी का इजहार करती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। मैं रोज़ तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत से ये गजरे लेकर आता हूँ, इन्हें पहना करो और जिस दिन तुम खुशी खुशी ये गजरे खुद उठाकर पहनोगी उस दिन मेरी मोहब्बत की जीत हो जाएगी। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे शदीद नफरत महसूस हुई और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम कभी भी अपनी मोहब्बत में जीत नहीं सकते। तुमने जिस तरह मुझे खौफज़दा किया और यहाँ पर ले आए, मैं वो बात कभी नहीं भुला सकती। न जाने तुम कौन हो और क्या हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और लगे रहो तुम मोहब्बत का दावा करने। मैंने नफरत से उसे देखते हुए कहा, जबकि वो कहने लगा, क्या तुम्हें अब भी मेरे बारे में मालूम नहीं हुआ कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और जिन्नात की दुनिया में रहता हूँ और इस वक्त तुम भी जिन्नात की दुनिया में ही मौजूद हो और एक घर के कैद खाने में हो। उस जिनज़ादे ने इतने मकरू अंदाज में सर्द नजरों से मुझे देखते हुए कहा कि मैं कपकपा कर रह गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच कह रहा है। ये जगह जितनी खौफनाक थी और जितनी ज़्यादा हैबतनाक थी, मुझे उसकी बातों पर यकीन आ रहा था और अब मैं सही मानों में परेशान होकर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और यहाँ से कैसे निकलूं। वो जिनज़ादा तो मुझे अपनी कैद में ले आया था, जबकि मुझे ज़ीशान का ख्याल आ रहा था और मैं बेहद खौफज़दा होकर रोने लग गई। ज़ीशान के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। और फिर जब मेरी आंख खुली तो वो जिनज़ादा मेरे करीब ही बैठा हुआ था और उसे अपने इतने करीब बैठा देखकर मैं हड़बड़ा कर उठी और अपने आप में सिमट कर दीवार के साथ लग गई, जबकि उसके हाथ में फिर से गजरे पकड़े हुए थे और वो उनको मेरे बालों में लगाना चाह रहा था। जबकि मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन मेरे हाथ झटकते ही उसकी आंखों में एक गुस्सा उतर आया और वो कहने लगा, आखिर तुम्हें क्या मसला है? मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, लेकिन तुम ना जाने किस मिट्टी की बनी हो और मेरी बात पर यकीन ही नहीं करती। उसने एकदम आगे बढ़कर मेरी कलाई जोर से दबोच ली। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हो गया था कि मैं एक ऐसे कुएं में गिर चुकी हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और मुझे इस जिनज़ादे के अलावा कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता था। इसीलिए मैं एकदम खामोश सी हो गई और आंखों में आंसू भर लाई। मेरे आंसू देखकर वो भी मेरी कलाई छोड़कर बैठ गया
और फिर उसने गजरे मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने चंद लम्हे सोचा और उनको थाम कर अपने बालों में लगा लिया। वो खुशी और मोहब्बत से मेरे चेहरे को देखता रहा। मैं अपनी धड़कनों के शोर को सुन सकती थी जो खौफ के मारे तेज तेज धड़क रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं यहाँ से उठकर कैसे जाऊँ। दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी और आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर खुद पर फूंकने लगी, और जिन सादा वहाँ बैठा रहा। और फिर जब वो वहाँ से गया तो मैंने जैसे सुख का सांस लिया और ख़ुद को समझाया कि अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें इससे ही किसी तरीके से वापसी का रास्ता मालूम करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे उसे अपनी बातों के शीशे में उतारूंगी और यहाँ से जाऊंगी। यहाँ पर तो मुझे कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा था, और ना ही यहाँ से आने जाने के रास्ते के बारे में मुझे कुछ मालूम था। वो जब यहाँ पर आता था उसके बाद वो दरवाज़ा न जाने कहाँ गायब हो जाता था कि मैं लाख उसके ऊपर हाथ मारती, लेकिन दोबारा वो दरवाज़ा मुझे नज़र नहीं आता था जब तक कि वो जिन साथ खुद दोबारा वहाँ से ना आ जाता। यहाँ पर बैठकर अब सब्र से इंतज़ार करने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी, और मुझे यही करना था। मुझे यहाँ पर वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था और ना ही पता चल रहा था कि दिन है या रात, लेकिन वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आज फिर से यहाँ पर बहुत बू फैली हुई थी। इतनी तेज़ बू के नाक पर हाथ रखकर मुझे उसे रोकने की कोशिश करना पड़ रही थी, और मैं फिर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। मुझे कै आ रही थी और दिल उलट रहा था, ताहम मैं खुद पर काबू पाए बैठी रही और नाक पर हाथ जमाकर उस बू को रोकने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर तक वो बू इसी तरह आती रही, और फिर जब वो ख़त्म हो गई कुछ देर के बाद वो जिनसादा चला आया। उसके हाथ में गजरे थे और वो आकर मेरे करीब ही बैठ गया। मैं एकदम सिमट सी गई। न जाने क्यों उसके आते ही मुझे एकदम इतना खौफ महसूस होता था कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं घबराहट के आलम में उसे देखती रहती। अब भी जब वो आकर बैठा तो मैं एकदम सिमट सी गई, और फिर जैसे ही उसने गजरे बढ़ाए मैंने खामोशी से थाम लिए। कुछ देर के बाद वो कहने लगा, तुम अच्छी लड़की हो, मैं जब तुम्हें गजरा देता हूँ तो तुम लगा लेती हो, जबकि जब कोई मेरी बात से इनकार करता है तो मैं उसे जीने नहीं देता, जिंदा जला देता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, और मैंने पूछा, क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब है? तो वो कहने लगा, तुमने जो सुना वो सही है, जो मुझे इनकार करता है तो मैं उसे जिंदा जला देता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही एक लड़की को जला कर आया हूँ। उस जिनसादे की बात पर मैं कपकपा कर रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच कह रहा है, इसीलिए वो बू इतनी तेज़ आ रही थी कि वो किसी इंसान के जिंदा जलने की थी, और इसीलिए वो इतनी तेज़ थी। ये एहसास होते ही मैं एकदम जैसे कपकपा गई। आंखों में खौफ उतर आने के बायस वो कहने लगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी हर बात मान लेती हो। अब बस कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहना। उसने बड़ी मोहब्बत से ये कहते हुए वो गजरा मेरे बालों में लगा दिया, जबकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी हिल न सकी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ़ का मुजस्मा बन गई हूँ। सांस लेते वक्त भी मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ताहम कुछ देर बाद खुद पर काबू पाकर मैंने उससे कहा, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों हो, जबकि मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं, तुम कहाँ से मेरे पीछे लग गई? मैंने जैसे बेबसी की हालत में उससे पूछा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि जब तुम मायूं की दुल्हन बनी बैठी हुई थी और मेहंदी और उपटन रचाकर अपने बालों में मोतिये के गजरे लगाए बैठी थी तो बेइख्तियार मुझे तुम पर बहुत प्यार आया था। मैं उसी मोतिये के पौधे पर रहता था, और जब वो गजरे तुमने बालों पर लगाए तो मैं तुम पर आशिक हो गया, और यूं उस दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लंबे घने बालों में लगे हुए गजरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि मैं बेइख्तियार सा हो जाता हूँ। उस दिन से मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। शादी के शुरू के दिनों में तुम गजरा लगाती रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं तुम्हें देखता रहता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तुमने गजरे लगाना छोड़ दिए थे। मुझे बहुत कौफ़त होती थी और गुस्सा आता था, इसलिए फिर एक दिन मैं तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया जिसे तुमने अपने बालों में लगाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर मैं तुम्हारे लिए रोज़ गजरे लाने लगा।
لیکن تم تو خوف زدہ ہو گئی اور تم نے انہیں لگانے سے انکار کر دیا۔ لیکن تم اچھی لڑکی ہو، اب آرام سے میری بات مان لیتی ہو اور گجرا لگا لیتی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے بے اختیار ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ نہ جانے کس طرح وہ مجھ تک آ گیا تھا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد تو میں جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی دن اس کو میری کسی بات پر غصہ آ جاتا اور وہ مجھے بھی باقی لڑکیوں کی طرح زندہ جلا دیتا۔ اسی لیے میں ہر وقت قرآنی آیات کا ورد کرتی رہتی اور خود پر پھونکتی رہتی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے کیسے نکلوں۔ مجھے اپنے گھر والے اور ذیشان بہت یاد آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ذیشان کو میرے یہاں آنے کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ نہ جانے اس نے مجھے واپس بلانے کی کوشش بھی کی تھی کہ نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جب تک میں یہاں پر تھی مجھے وہ یاد تو آتا تھا، اور نہ جانے میں یہاں سے نکلتی بھی کہ نہیں، اور کیا پتہ میں ساری زندگی یہیں پر قید رہ جاتی۔ یہ سوچ آتے ہی میں ایک جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی اس دور سے بھی گزرنا ہوگا اور یہاں پر اس طرح قید میں رہنا ہوگا۔ آج میرا دل بار بار پر بھر آ رہا تھا اور مجھے اس جن زادے سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں یہیں پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے جیسے ایک گہرے سکون کا احساس ہوا۔ سکون کا احساس ہوتے ہی میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سبزے پر چلتی جا رہی ہوں۔ میں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور ارد گرد کا سبزہ اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کر رہی تھیں کہ اتنے میں سامنے سے سفید لباس میں ایک جوان آتا ہے۔ وہ سفید گھوڑے پر ہی سوار ہوتا ہے۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھتی ہوں، اور پھر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی ہوں بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں خود کو دیکھتی ہوں تو اب یہ جگہ کچھ اور تھی، یہاں پر کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں ایک دم بے اختیار اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ جانی پہچانی سی محسوس ہوتی ہے، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا کمرہ ہے جو میرے سسرال میں میرے لیے مخصوص تھا۔ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہوں اور خود کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھتی ہوں۔ میں زندہ تھی اور اس وقت اپنے سسرال والے کمرے میں موجود تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ میں بالکل صحیح سلامت تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر باہر آتی ہوں تو وہاں پر سب لوگ پریشان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں ذیشان ذیشان پکارتی ہوں۔ ان کے قریب آتی ہوں تو وہ حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ میں ہوں تو بے اختیار سب مجھ سے ملتے ہیں اور شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ میں رو رہی ہوں، میری آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہی تھی، جبکہ وہ سب مجھے اپنے ساتھ لگائے باری باری ہمت اور حوصلہ دے رہی تھی۔ اور پھر سب سے ملنے ملانے کے بعد جب ذیشان کی امی نے مجھ سے پوچھا، بہو آخر اس رات کیا ہوا تھا جب تم چھت پر گئی تھی؟ ذیشان کی امی کے پوچھنے پر میں نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ذیشان نہیں بلکہ ایک مکروہ چہرے والا جن زادہ تھا، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں قید خانے میں تھی، اور اتنے عرصے سے میں وہیں پر تھی۔ میں نے بہت بار اس کی منت کی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور اب آج اتنے دن گزر جانے کے بعد میں یہاں پر آئی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح یہاں پر پہنچی ہوں۔ میں نے حیرانی کے اظہار کے طور پر ان سب سے کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو ذیشان کی امی کہنے لگی، دراصل جس دن سے تم گئی ہو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا غیر معمولی ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے اسی دن ایک عامل بابا سے خدمات لی تھیں۔ ان سے جب ہم نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا تو انہوں نے عمل کے ذریعے پتہ کروایا تھا کہ ایک جن زادہ تمہارے اوپر عاشق تھا اور وہ تمہیں اپنی قید میں لے گیا ہے، اور جب تک عمل مکمل نہیں ہوگا تم یہاں پر واپس نہیں آ سکتی، اور آج تم ٹھیک 40 دن کے بعد واپس آئی ہو۔ ذیشان کی امی نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ مجھے وہاں پر وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ دن ہے یا رات، اسی لیے تو میں دنوں کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ لیکن ذیشان کی امی کی زبانی جب مجھے سارے حالات کا علم ہوا تو میں نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ انہوں نے بر وقت کسی عامل بابا سے رابطہ کر کے مجھے وہاں سے واپس بلوا لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یا تو وہ جن زادہ مجھ سے نکاح کر کے
हमेशा के लिए मुझे अपने महल में रख लेता, और या फिर वो मेरा इनकार करने पर मुझे जिंदा जला देता, जिसके बाद मुमकिन ही नहीं था कि मैं कभी अपने घर वापस आ पाती। ज़ीशान को देखकर अब मुझे इत्मीनान का एहसास हो गया था और मुझे यकीन था कि आइंदा आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन इस सारे वाक़े के बाद सब कुछ तो मामूल पर आ गया था। ताहम आज भी जब मैं कहीं पर भी गजरे देखती हूँ या किसी को लगाए हुए देखती हूँ तो न जाने मुझ पर खौफ की ये कैसी कैफियत तारी हो जाती है कि दोबारा काफ़ी देर तक मैं उसमें से उभर ही नहीं पाती। आज भी वो गजरे मुझे खौफज़दा कर देते हैं और उस जिनज़ादे की याद दिलाते हैं जो मुझ पर काबिज हो गया था और कैद करके अपने महल में ले गया था। ताहम जब जब मुझे ऐसा कोई ख्याल आता है तो मैं कुरानी आयात पढ़कर खुद पर एक हिसार बांध लेती हूँ और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इस कैफियत से निकल आऊँगी और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून होगी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।